हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। दिस इज़ द फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है। दिस इज़ अ फ्यूचर चार्ट, 5 मिनट्स चार्ट है फ्यूचर का। एंड प्राइस इज ट्रेडिंग एट द लेवल PDL. PDL मीन्स प्रीवियस डे लो. Okay, this is a PDH. PDH means previous day high. Okay, this is a central line. Right now, if you see, price is trading below this swing. Okay, below this swing means it's a bearish zone. It's a bearish trading zone. So I would like to plan the put side trade here only. I am waiting for the opportunity. Okay, it's going down below the PDL. I will try to quick scalp here. Okay, I think 25,900 put. मॉर्निंग में क्विक होना पड़ता है. So still I am observing the candle. Somehow it's taking the rejection of this PDL. Okay, I will plan the put side trade here and quick scalp. I will not hold the trade. Okay, 25,900 put. Okay, I punched the order and quickly I will try to scalp the 10 points. 79. Okay, exit. Within some second I exit this trade. Okay, quickly 10 points, very quick. Morning hour, try to be very quick. Okay, just I think if you see, just some second I have exited this trade. $168 buying and $178 selling price. Quick scalping trend, 10 points here. Okay, I punched the order using my laptop, so the speed will be very high. Okay, the first scalping net profit is 7,000 rupees. Still this candle is showing the wicks, so I will not hold the trade here. Okay, why I this plan the trade? There is a probability concept. I will explain after this video. Probability concept, very interesting study you will see. मैं इस वीडियो के बाद probability concept explain करूँगा. अगर आगे कुछ opportunity तो उसको देखते हैं, नहीं तो मैं explain करूँगा उसको फिर. ठीक है, देखिए 165 आ गए, 164. अगर होल्ड करते तो शायद ये ट्रेड हमारा लॉस में चला जाता. आई थिंक हमने जो ट्रेड लिया था वो 13 मतलब हार्डली यहाँ पर आप देखोगे तो 13 सेकंड के अंदर मैंने उसको एग्जिट कर दिया था. ठीक है, ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शार्प स्पाइक लगा यहाँ पर. ओके ओके, I was expecting this kind of spike, but not this is very big spike call side, but I have not buy the call here. मैंने call नहीं खरीदा. क्यों नहीं खरीदा? Because I am expecting the put side trade. Okay, price is trading at this closing price. If I get the opportunity to put side, I will enter again on the put side because there is a probability on put side. So this candle is also taking the rejection, but I will wait to close this candle. Okay, I have not buy the call here. Okay, मैंने कोई भी कॉल नहीं खरीदा. इतना बड़ा स्पाइक आने के बाद भी देखिए ये एक स्पाइक है, ये एक स्पाइक है. स्टिल आई वॉज वेटिंग. ओके, कल की जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसके आसपास अब ट्रेड कर रहा है, कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास. ठीक है, ये जो गैप था ये फिल हो गया. अब क्लोजिंग प्राइस के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है. ठीक है, अब देखिए स्टिल दिस कैंडल क्लोज होने में 1 मिनट बाकी है कि स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग पुट साइड ट्रेड हियर, नॉट ऑन कॉल साइड, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इज ऑन द पुट साइड टुडे. ओके, दिस कैंडल स्टिल इट्स कैंडल इज नॉट क्लोज. कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसलिए मैं एंट्री नहीं करूँगा यहाँ पर कोई भी. ओके, 45 सेकेंड स्टिल देयर.
Price at the important level. Okay, still I'm waiting. If I will not get the entry, I will not enter. Okay, it's taking the rejection, so I will prepare in the order 25,900. Put again 750 quantity. I will buy at limit price. Okay, 129 चल रहा है ना, चलो 128 की मैं लिमिट प्राइस लगा देता हूँ पुट साइड के लिए 128. ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया हमारी. ओके, ऑर्डर के लेते ही देखो प्राइस कहाँ पर चला गया, 132. ओके, हल्का सा आपको गैप डाउन दिख रहा है यहाँ पर. सी फ्रेंड्स, हल्का सा यहाँ पर गैप डाउन दिख रहा है, इसलिए प्राइस है ना वो आगे चला गया. ट्रेड लेते ही प्रॉफिट में दिख रहा है वो. ओके, 128 को लिमिट ऑर्डर लगाई, एग्जीक्यूट हो गई और ट्रेड सीधा लेते ही प्रॉफिट में चल रहा है. देखते हैं कैंडल कैसे बनती है. ओके, वेरी गुड ट्रेड. 36. ओके, 37. I will try to book the profit above the 150. Okay, premium are increasing very quick. 141. Okay, 142. I will try to exit the trade above the, try to 150 के आगे मैं सोचूंगा फिर. ओके, 119,000. ओके, वेरी गुड मूव. ओके, वेरी गुड. 151. वेरी गुड. ओके, लेट्स सी. कैंडल स्टिक अब PDL के पास आ चुकी है. PDL जो कि एक सपोर्ट भी ले सकती है यहाँ पर हल्का सा. सो इस लेवल पे होल्ड किया जाए ना किया जाए, अब मुझे है कन्फ्यूजन. देखिए ये जो लेवल है ये PDL का लेवल है. सो मैं देखूंगा यहाँ पर, नहीं तो ट्रेड को प्रॉफिट बुक कर लूँगा फिर. ओके, क्विक मोमेंटम आया, वेट नहीं करना पड़ा हमें इस ट्रेड में. ओके, देखते हैं. अभी भी कैंडल स्टिक क्लोज होने में यहाँ पर 3 मिनट्स बाकी है. अब मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ना स्पॉट फ्यूचर का भी चार्ट है. स्पॉट का भी चार्ट मैं ऑब्जर्व करता हूँ, फ्यूचर का भी ऑब्जर्व करता हूँ. लैपटॉप से ऑर्डर पंच करने का काम भी यहाँ पर चलता है. 151. ओके, वेरी गुड. स्टॉप लॉस जो था ना हमारा 7-8 पॉइंट का ही था. 7-8 पॉइंट के अगेंस्ट हम 20 पॉइंट बुक करने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर, 20+ पॉइंट. ओके, वेरी गुड. 152 दिखाया तो उसने. देखते हैं, अभी कैंडल टच हो रही है PDL को. सो आई थिंक मुझे प्रॉफिट बुक करना होगा शायद यहाँ पर. देखते 150 की फिर मैं सोचूंगा तो सेलिंग प्राइस भी लगा सकता हूँ 53. देखते कितना मिलता है, नहीं तो फिर बुक कर लेंगे यहाँ पर. कभी कभी प्रीमियम रिवर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, ओके, बुक कर लिया 150 के. एक्चुअली मैंने लगा दी थी प्राइस, बुक कर लिया प्रॉफिट. अब देखिए कैंडल लगभग यहाँ पर PDL को टच हो रही है. 128 बाइंग, 150 सेलिंग प्राइस. हार्डली हम ट्रेड में थे, 2-3 मिनट्स में ट्रेड में थे. ठीक है, क्विक मोमेंटम आया यहाँ पर. आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग. व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग? देखिए 128, 150 सेलिंग हमारी, क्योंकि वहाँ पर ना प्रोबेबिलिटी थी. प्रोबेबिलिटी कौन सी थी, मैं आपको ना कुछ स्टडी के स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको. स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि एक दिन पहले मैंने स्टडी किया. तो ओके, वो देखिए प्रीमियम 150 के आगे चले गए हैं, थोड़ा 157, 158 भी चले गए. ठीक है, ठीक है, होल्ड करना कभी कभी मुश्किल रहता है. क्विक स्पाइक आ गया 157, 158. ठीक है, कोई इशू नहीं. जो टोटल 2 ट्रेड लिया हमने, उसका जो प्रॉफिट है 23,500 का. अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा. इसकी अगर आपको वेरीफाइड लिंक चाहिए सेंसिबल की तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं. देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या, मॉर्निंग में हमने यहाँ पर एक क्विक स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया जिसमें प्रॉफिट किया. फिर यहाँ से एक स्पाइक आया. स्पाइक के बाद क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मैं यहाँ पर पुट साइड के लिए इंटरेस्टेड क्यों था, तो उसका भी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया लेकिन यहाँ पर. ठीक है, मैं आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ.
हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको प्रोबेबिलिटी क्यों मैंने डाउन साइड ट्रेड प्लान किया था, उसके लिए क्या स्टडी था मेरा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको ना ये 2 मई का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट तो ऑलरेडी लेके रखे हैं। देखिए ये 2 मई का स्क्रीनशॉट है और कैंडल कैसी है, ऐसी डोजी कैंडल है। ठीक है, अब 2 मई का ही क्यों, क्योंकि आज 14 नवंबर है। अब 13 नवंबर को भी कैसी कैंडल हुई थी, तो ऐसी डोजी टाइप की कैंडल हुई है। ठीक है, मतलब आज के एक दिन पहले का आप चार्ट ओपन करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि कैंडल कैसी बनी है। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, फ्यूचर का देखो, स्पॉट का देखो, कोई इशू नहीं। तो कैंडल कैसी है, बिल्कुल ऐसी डोजी टाइप की कैंडल दिख रही नहीं कैंडल। ठीक है, ये कैंडल 13 नवंबर की कैंडल है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ ये 2 मई का चार्ट। उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 5 मई को था, तब मार्केट ने कैसे बिहेवियर दिखाया था आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 2 मई की कैंडल कैसी थी, डोजी टाइप की थी। नेक्स्ट दिन का बिहेवियर देखो कैसा है। 5 मई को जब मार्केट खुलता है, ये 5 मई का दिन है, ये मंडे का दिन, ये फ्राइडे का दिन था 2 मई का, 2 दिन छुट्टी थी, तो ये 5 मई का दिन है। ठीक है, मार्केट सीधा स्विंग हाई के पास खुला। अब देखिए प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं खुला, स्विंग हाई के पास खुला। सेंटर लाइन हो सकती है यहाँ पर, ये सेंटर लाइन के पास खुला और यहाँ पर सबसे पहले नीचे स्पाइक लगाया, बाद में अपसाइड की मोमेंटम दिखाई। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले स्पाइक नीचे लगाया, बाद में अपसाइड गया है। ठीक है, अब ये दिन आप ध्यान में रखिए। देखिए उस दिन मैंने कुछ ट्रेड लिए थे, तो वो ट्रेड यहाँ पर एक ट्रेड सक्सेस हुआ था, लेकिन बाद में वो अपसाइड गया था। और दूसरा एक दिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिन हुआ हमारा 5 मई का, और एक दिन है उसमें, तो आप वो भी देख लो कि 9 सितंबर का दिन है। ठीक है, 9 सितंबर का दिन ही क्यों, क्योंकि उसके पिछली वाली जो कैंडल थी, आप एक बार देख लो, ये जो कैंडल थी 8 सितंबर की कैंडल, देखिए डोजी कैंडल है। ठीक है, ये 8 सितंबर कैंडल डोजी है, और 9 सितंबर को हम देखेंगे कि 5 मिनट्स के चार्ट पर क्या बिहेवियर था प्राइस का। ठीक है, अब देखिए 9 सितंबर को कैंडल कैसी थी, डोजी थी, मैंने आपको दिखा दी। मार्केट कहाँ खुल रहा है, प्रीवियस डे रेंज के अंदर खुल रहा है। ठीक है, ये पीडीएच की लाइन है, पीडीएल की लाइन है, सेंट्रल लाइन है। ओके, 5 सितंबर को भी अपसाइड खुला था स्विंग हाई के पास, और आज भी मिडल में खुला है। यहाँ पर देखिए साइडवेज हो गया है। ठीक है, प्राइस का बिहेवियर आप देखिए, मिडल में खुला, साइडवेज हो गया। और 5 मई को क्या हुआ था, मतलब मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया होगा पता है नीचे, क्योंकि यहाँ पर सेलर यहाँ सेल किए होंगे, यहाँ सेल किए होंगे, मार्केट बीच में साइडवेज हो गया। ठीक है, अब वापस मैं लेके चलता हूँ आपको 5 मई के चार्ट के ऊपर, जो कि हमने देखा था। ठीक है, 5 मई को क्या हुआ था, प्रोबेबिलिटी कैंडल डोजी थी, ये ऊपर खुला स्विंग हाई के ऊपर, एक नीचे स्पाइक लगाया और ऊपर चला गया। अब आज क्या हुआ है, मार्केट जो है ना, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखो आप कैसी है, डोजी टाइप की कैंडल है। अब प्राइस का बिहेवियर देखो कैसे है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे। ओके, देखिए 5 मिनट्स का चार्ट है। अब मार्केट कहाँ खुल रहा है, पीडीएल के पास खुल रहा है। ठीक है, पीडीएल अब पहले कहाँ खुला था, 5 सितंबर को यहाँ पर खुला था, नीचे स्पाइक लगा, ऊपर गया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये एक ऊपर स्पाइक लगाए और नीचे जाए, क्योंकि नीचे की दिशा में खुला है। लास्ट टाइम क्या होगा, 5 मई को ऊपर खुला, नीचे यहाँ स्पाइक लगा, ऊपर जाए। अब नीचे खुला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले ऊपर स्पाइक लगाए फिर नीचे जाए, और क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक रेजिस्टेंस लगता है, तो मैंने यहाँ पर पुट खरीदा था। ठीक है, सिंपल प्राइस बिहेवियर था, तो उसको मैंने यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग क्यों किया, क्योंकि ये पीडीएल का लाइन है, ये स्विंग लो का लेवल है, शायद स्पाइक लगा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्विक स्कैल्प किया फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड में थोड़ा सा होल्ड किया, ज़्यादा होल्ड भी नहीं किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पहले नीचे खुला, ऊपर स्पाइक लगाया, फिर नीचे गया है। ओके, और इसके पहले जो 5 मई को क्या हुआ था, ऊपर खुला था, पहले नीचे स्पाइक लगाया, बाद में ऊपर गया। आज नीचे खुला, ऊपर स्पाइक लगाया, नीचे गया। ठीक है, ये एक अपोजिट टाइप का बिहेवियर मैंने एक्सपेक्टेड था। तो आज का जो प्रॉफिट है वो जो है 23,000 का प्रॉफिट है। इसकी वेरीफाइड लिंक में डाल दूंगा। 2 ही ट्रेड लिए, दोनों भी प्रॉफिट में है। और ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी स्टडी है। आप क्या करो, चार्ट ओपन करो, और चार्ट ओपन करके डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करो, फिर प्रोबेबिलिटी को स्टडी करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये प्रोबेबिलिटी का।
उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी कि डेली टाइम फ्रेम के बेस पे प्रोबेबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश हुई, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ दूसरी चीज़। ओके, देखिए डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग रेड है तो नेक्स्ट दिन प्रोबेबिलिटी पुट साइड ज़्यादा होगी। ओके, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन है तो नेक्स्ट दिन कॉल साइड वर्क होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये दिस इज अ सिंपल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट विच I want to explain to you, very important concept. Open the chart and study this concept. Okay friends, so I think ये लर्निंग वीडियो था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।